پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا، سینیٹر اعجاز چودھری، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچر اور ایم این اے احمد چٹھا نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی کے تینوں رہنماؤں کو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ الیکشن کمیشن نے تینوں نشستیں خالی قرار دے دیں۔ بس یہ سب کچھ اب بند ہونا چاہیے، اس سب سے جمہوریت داؤ پر لگ گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے فیصلے پر رد عمل۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ملک احمد بچر، احمد چٹھا اور سینیٹر اعجاز چودھری کو آرٹیکل 63(1) کے تحت نااہل کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی امتیازی رویے کی عکاسی کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس بات کی تحقیق نہیں کی کہ انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے یا نہیں۔ اسی طرح ہمارے چترال سے اہم ایم این اے عبداللطیف کے خلاف بھی الیکشن کمیشن نے تضاد پر مبنی فیصلہ دیا۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کے بیان کی سختی سے تردید کر دی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے اعجاز چودھری، احمد چٹھا اور ملک احمد بچر کو اے ٹی سی عدالت نے سزا سنائی۔ عدالت کی جانب سے دی گئی سزا ابھی تک برقرار ہے۔ اس فیصلے کو سیٹ اسائیڈ نہیں کیا گیا۔ عبداللطیف چترالی کا کیس مختلف ہے۔ عبداللطیف چترالی اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں گئے، ان کے شریک ملزمان گئے۔ عدالت کا فیصلہ سیٹ اسائیڈ کرتے ہوئے چترالی کے شریک ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا۔ چترالی اس اپیل میں شامل نہیں ہوئے، اس لیے انہیں نوٹس جاری کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بدترین ہنگامہ آرائی۔ اپوزیشن رکن خالد نثار ڈوگر نے حکومتی رکن حسان ریاض کو تھپڑ مار دیا۔ دونوں جانب کے ارکان ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے۔ قائم مقام سپیکر نے اپوزیشن رکن خالد نثار کی رکنیت 15 نشستوں کے لیے معطل کر دی۔ کورم کی نشاندہی کرنے پر اپوزیشن کے ایک اور رکن امتیاز شیخ کی بھی رکنیت 15 نشستوں کے لیے معطل کر دی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پنجاب اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بدترین ہنگامہ آرائی اور نعرے بازی۔ اپوزیشن رکن خالد نثار ڈوگر نے حکومتی رکن حسان ریاض کو تھپڑ جڑ دیا۔ اس دوران دونوں جانب کے ارکان میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ قائم مقام سپیکر ظہیر اقبال نے اجلاس ملتوی کرتے ہوئے حکومت اور اپوزیشن کے ارکان کو سپیکر چیمبر میں طلب کیا۔ تفصیلی مشاورت کے بعد ظہیر اقبال نے اپوزیشن رکن خالد نثار ڈوگر کو 15 نشستوں کے لیے معطل کر دیا۔ اس موقع پر پارلیمانی امور کے وزیر مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کہنا تھا یہ ایوان کے تقدس کا معاملہ ہے جس پر سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے۔ اس دوران اپوزیشن نعرے بازی کرتے ہوئے ایوان سے باہر نکلی تو اپوزیشن رکن امتیاز شیخ نے کورم کی نشاندہی کر دی، جس پر ظہیر اقبال نے 15 نشستوں کے لیے ان کی رکنیت بھی معطل کر دی۔ اپوزیشن کی غیر موجودگی میں حکومت نے زرعی انکم ٹیکس پنجاب 2025 سمیت متعدد بلوں کی منظوری دے دی۔ اپوزیشن ارکان کے پریس ہال سے باہر نکلتے وقت 2 نامعلوم شخص اپوزیشن ارکان سے ٹکرائے۔ ٹکراؤ کے بعد 2 نامعلوم افراد نے گالیاں نکالی۔ اسمبلی سیکیورٹی نے وقت پر پہنچ کر دونوں فریقوں کو الگ کیا۔ اپوزیشن اور حکومتی ارکان پھر آمنے سامنے آ گئے۔ اپوزیشن ارکان کے پریس ہال سے باہر نکلتے وقت 2 نامعلوم شخص اپوزیشن ارکان سے ٹکرائے۔ ٹکراؤ کے بعد 2 نامعلوم افراد نے گالیاں نکالیں۔ اسمبلی سیکیورٹی نے وقت پر پہنچ کر دونوں فریقین کو الگ کیا۔ دونوں نامعلوم افراد نے ایوان میں ہونے والی لڑائی پر جوابی کارروائی کی۔ اپوزیشن رکن احمد مجتبیٰ کو ٹارگٹ کیا گیا۔ بھارتی سابق وزیر داخلہ چدمبرم نے مودی حکومت کو آئینہ دکھا دیا۔ چدمبرم کا بیان بھارت کے پاکستان پر لگائے الزامات کو جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں بھارتی حکومت حملہ آوروں کی شناخت چھپا رہی ہے کیونکہ وہ بھارتی تھے۔ پاکستان پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کی پیشکش کر چکا جس کا بھارت انکاری ہے۔ مودی حکومت پاکستان پر الزامات کی بجائے اپنی اندرونی ناکامیوں کا جائزہ لے۔ پاکستان خطے میں امن کا حامی ہے، بھارت صرف الزامات کی روش پر برقرار۔ ڈونلڈ ٹرمپ 27 بار کہہ چکے کہ سیز فائر میں ان کا کلیدی کردار تھا، لیکن ہٹ دھرمی کی انتہا مودی اس کو مسلسل جھٹلا رہا ہے۔ آپریشن سندور کی ناکامی۔ مودی سرکار نے آپریشن مہادیو کا آغاز کر دیا۔ معصوم پاکستانیوں کو فیک انکاؤنٹرز میں استعمال کرنے کا منصوبہ بے نقاب۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت نے آپریشن مہادیو کے نام پر مقبوضہ کشمیر میں دوبارہ جعلی مقابلے کر دیے۔ آپریشن مہادیو کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں بڑھتی ہوئی تحریک آزادی کو کچلنا ہے، اندرون ملک سیاسی ساکھ بحال کرنا بھی ہے۔ بھارتی حکومت آپریشن مہادیو کو کامیاب فوجی مہم کے طور پر پیش کرنے کے لیے کوشاں تاکہ آپریشن سندور کی خفت مٹائی جا سکے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔
मैं अब तक 6 जंगें रुकवा चुका हूं। पाक भारत जंग सबसे बड़ी जंग थी। जंग ना रुकवाता तो दोनों ममालिक में अब तक जारी रहती। दो एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग के नताइज खतरनाक होते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की स्कॉटलैंड में बरतानवी वजीर आजम सर केयर स्टारमर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने कहा, गजा में जंग बंदी मुज़ाकरात में मुश्किलात दरपेश हैं। हमास के साथ डील करना मुश्किल है। हमास इसराइली यरगमालियों को रिहा नहीं करना चाहती। गजा में जंग बंदी के लिए इसराइल पर भी जिम्मेदारी है। उम्मीद करते हैं गजा में ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंच जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल के लिए आला सतही बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। कॉन्फ्रेंस के मौके पर इसहाक़ डार की मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारिजा से मुलाकात। रहनुमाओं में सियासी, मुआशी और सकाफ़ती ताअवुन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारिजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राबता भी हुआ। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के बाद राबते में कई उमूर ज़ेर गौर आए। दो तरफा मामलात, टैरिफ समेत बाहमी उमूर पर मुश्तमिल इलाकाई और आलमी मामलात पर गुफ्तगू की गई। रेलवे स्टेशन लाहौर पर पाक बिजनेस एक्सप्रेस के इफ्तिताह की तैयारियां जारी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ आज 29 जुलाई पाक बिजनेस एक्सप्रेस का इफ्तिताह करेंगे। मुसाफिरों की सहूलत के पेश नज़र सिर्फ 29 जुलाई वाले दिन ट्रेनों को मुतबादिल स्टॉप दे दिए गए। ट्रेनों को शाहदरा, कोट लखपत के अलावा लाहौर कैंट रेलवे स्टेशनों पर स्टॉप्स दिए गए हैं। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली 101 अप रेल कार और रावलपिंडी से आने वाली रेल कार 102 डाउन शाहदरा रेलवे स्टेशन पर स्टॉप करेगी। रावलपिंडी में जिरके के फैसले पर 18 साल लड़की सिदरा को कत्ल करने के मुकदमे की तफ्तीश अहम मरहले में दाखिल हो गई। अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस ने यूनियन काउंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन और गैर कानूनी जिरके के सरबराह असमतुल्लाह समेत मजीद 6 मुल्जिमान की गिरफ्तारी डालते हुए अदालत से जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान की मजमूई तादाद 9 हो गई। ना चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, ना ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 5 अगस्त के एहतजाज की क़ियादत सरबराह तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान महमूद खाना चकज़ई करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ जुनैद अकबर का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एहतजाज कहाँ होगा, 31 जुलाई को APC में फैसला होगा। तमाम अपोजिशन जमातें मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहती हैं। 5 अगस्त के एहतजाज में PTI क़यादत ने फ्रंट लाइन पर होगी। मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात एहतजाज में शामिल नहीं होगी। अपोजिशन के पास एक मेंबर भी ज्यादा होगा तो अदम एतमाद लाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, PTI अब अपनी जेब से एहतजाज करेगी। पहले सरकारी वसाइल पर एहतजाज होता था। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अपने इलाके में दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सकते। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक बयान के लिए बुलाई गई। सूबाई हुकूमत बदअमनी खत्म करने में नाकाम हो चुकी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है, बानी PTI सियासी कैदी नहीं, सर्टिफाइड चोर हैं। कारकुन रिहा कराने की बजाय गिरेबान पकड़ें। जेल से निकलने के लिए अदालत का सामना करना होगा। जमहूरियत पर किसी को अपने मफाद के लिए शब खून मारने नहीं देंगे। तफसीलात अब्दुल वली की इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, बानी PTI सियासी कैदी नहीं, सर्टिफाइड चोर है। कारकुनान इन्हें रिहा कराने के बजाय गिरबान से पकड़ कर पूछें कि करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने वाला करप्शन में मुलविस कैसे हुआ। बानी PTI एक सजा याफ्ता मुजरिम है जिनके खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का वो केस जो दुनिया की तारीख में शफाफ तरीन चोरी का केस है कि जिसका हर दस्तावेजी सबूत मौजूद है। PTI के कारकुनों को अपने बानी की रिहाई का मुतालबा करने की बजाय अडियाला जेल जाके अपने लीडर का गिरबान पकड़ना चाहिए। कराची प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए एहसन इकबाल का कहना था, मुल्क की तरक्की में ख्वानदगी बहुत जरूरी है। टॉक शो मसाइल का हल नहीं। ग्रीन लाइन की तौसी मंसूबे का जल्द वज़ीर आज़म कराची में इफ्तिताह करेंगे। इंशाल्लाह अनकरीब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची में ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के एक्सटेंशन का भी संगे बुनियाद रखेंगे, जिससे कराची के शहरियों को बहुत सहूलत मिलेगी सफ़र के अंदर। वफाकी वजीर का कहना था, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। सफारतकारी के मैदान में मजबूत अंदाज उभर रहे हैं। मुआशी पॉलिसी पर ट्रेनिंग के लिए तमाम प्रेस क्लबों के साथ MOU साइन करने पर भी जोर दिया। कैमरामैन बाकिर रजा के साथ अब्दुल वली, न्यू न्यूज़, कराची।
सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब मियां हम्माद अजहर की रिहाइशगाह अहमद। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर की वफात पर मियां हम्माद अजहर से ताज़ियत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की मियां हम्माद अजहर की रिहाइश का आमद। सलमान अकरम राजा का हम्माद अजहर से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, मियां अजहर अपने नजरिए के साथ और लीडर के साथ खड़े रहे, डटे रहे। जिस तरह हम्माद अजहर खड़े हैं, ये मियां अजहर का ही विरसा है। अजहर साहब एक मुनफरिद शख्सियत थे, बुर्दबार, शराफत का पैकर, हिम्मत का पैकर, इस्तक़लाल का पैकर। उनसे चंद माह कबल मुलाकात हुई लाहौर के जलसे में, उसके बाद डयाला जेल के बाहर भी उनको बिल्कुल साबित कदम पाया। इस उम्र में भी वो अपने नजरियात पर डटे हुए थे। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने बानी तहरीक इंसाफ की हिदायत पर होने वाले एहतजाज पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि 5 अगस्त को किसी एक मुकाम पर इकट्ठे नहीं होना, हर जगह अपना एहतजाज करना है, आवाज बुलंद करनी है। अगर आइन और कानून के मुताबिक अदालतें चलें तो ये फैसले कायम नहीं रह सकते। मियां अजहर के हल्के में हक इनके खानदान का है, पार्टी जो फैसला करेगी बता दिया जाएगा। वफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जाह की ज़ेर सदारत एडवाइजरी कमेटी का इजलास। आसिफ महमूद जाह ने कहा, FTO ने गुज़श्ता कुछ अरसे में 22.79 बिलियन के रिफंड टैक्स दहिंदगान को अदा करवाए हैं। FTO लोगों को तेज़ और सस्ता इंसाफ फराहम कर रहा है। लाहौर ऐवान सनत व तजारत में मुनाकिदा इजलास से इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी टैक्स मोहतसिब ने गुज़श्ता 4 साल से लोगों को FTO बारे आगाही देने में कोशा हैं। वफाकी टैक्स मोहतसिब ने टैक्स दहिंदगान को एतमाद और इज्जत दी है, जिसके नतीजे में गुज़श्ता साल के 2500 केसेस के मुकाबले में रवां साल के पहले 6 माह के दौरान ही 23,000 शिकायत आ चुकी हैं, जिससे वफाकी टैक्स मोहतसिब पर आवाम के बढ़ते एतमाद और उनकी शिकायत के अजाले का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वेलकम बैक। शुगर मिल्स मालिकान और डीलर्स की मिली भगत, मुल्क में चीनी का शदीद बहरान, अवाम हो गए हलकान। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी की किल्लत पैदा हो गई। 4 दिन से बेशतर दुकानों पर चीनी दस्तयाब ही नहीं। होलसेल डीलर्स ने शुगर मिल्स से चीनी खरीदना बंद कर दी। कहते हैं चीनी का सरकारी रेट 172 रुपये किलो मुकर्रर किया गया। मंडी से होलसेल में चीनी 178 से 188 रुपये किलो मिल रही है। दूसरी जानिब चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 24 दुकानदार गिरफ्तार, 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1320 को जुर्माने। चीनी का मसला नहीं, मसलहत है। चीनी जानबूझकर बरामद की गई। शहबाज शरीफ के होते हुए चीनी बरामद हुई और महंगी भी। वज़ीर आज़म शुगर मिल्स के मालिक इसहाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड में हैं। क्या ये मफादात का तसादुम नहीं है? मिफ्ता इस्माइल कहते हैं जिस माह चीनी की क्रशिंग होती है उस वक्त एक्सपोर्ट की जाती है। नवंबर में चीनी बाहर से आएगी, चीनी और गन्ने की कीमत कम हो जाएगी। झूठे इल्ज़ामात पर तारिक फजल चौधरी मुआफ़ी मांगें। किसानों को मौजूदा हुकूमत से तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने 244 अरब रुपये की बिजली ओवर बिलिंग की है। हुकूमत का शुगर मिल्स के तमाम ज़खायर की सख्त निगरानी का ऐलान। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का चीनी की कीमतों और मुआहदे की खिलाफ वर्जी का नोटिस। चीनी की किल्लत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंदिया दे दिया। राना तनवीर हुसैन ने इजलास से खिताब में कहा, चीनी की कीमत और फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। रोजाना की बुनियाद पर शुगर सेक्टर के मसाइल हल किए जाएंगे। हुकूमत सारिफीन और सनत दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। अपना मीटर अपनी रीडिंग प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। अपना मीटर अपनी रीडिंग सार्फिन बिजली के लिए खुद रीडिंग जमा कराने के लिए हुकूमत का एक जदीद और इनकलाबी इकदाम है। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद बिजली के सार्फिन को खुद अपनी मीटर रीडिंग जमा कराने का इख्तियार देना और उन्हें बाइख्तियार बनाना है। इससे शहरियों को क्या फ़ायदा होगा, इस पर देखते हैं वक्कास शेराज की ये रिपोर्ट। अपना मीटर अपनी रीडिंग का आगाज, शहरी अब रीडिंग खुद जमा करा सकेंगे। अपना मीटर अपनी रीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन पावर स्मार्ट ऐप के जरिए सार्फिन अपने बिजली की रीडिंग खुद करेंगे, जिससे न सिर्फ शफाफियत में इजाफा बल्कि जायद बिलिंग के खात्मे में मदद मिलेगी। अपनी रीडिंग ऐप एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। पहले हमें जो है अपनी रीडिंग के लिए या हर चीज़ के लिए बार बार ऑफिस जाना पड़ता था
उसके लिए मैं ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पावर स्मार्ट मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है। सारिफ अपना कंज्यूमर आईडी और दीगर मतलूबा मालूमात दर्ज करके ऐप पर रजिस्टर होने के बाद इसके फीचर अपना मीटर अपनी रीडिंग से मुकर्रर तारीख पर अपने बिजली के मीटर की तस्वीर लेकर ऐप के जरिए अपलोड कर सकते हैं। सारिफ की भेजी गई रीडिंग को हतमी समझा जाएगा। मोबाइल पे पावर स्मार्ट ऐप को डाउनलोड करें, उसके अंदर एक फीचर है अपना मीटर अपनी रीडिंग। रजिस्टर होने के बाद जिस दिन आपकी रीडिंग होगी, जो आपका बैज होगा, जो रीडिंग होगी, उसी दिन उस ऐप के थ्रू आपका कैमरा जो है वो आप उसके थ्रू रीडिंग ले सकते हैं। अपना मीटर अपनी रीडिंग के अमली नफाज से ओवर बिलिंग रीडिंग की गलतियों और बिलिंग में ताखीर को कम करने में भी मदद मिलेगी। तस्वीर अपलोड होने से सार्फिन नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल होने से भी बच जाएंगे। अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप की लॉन्चिंग को शहरी खुश आइन करार देते हैं। कैसे कहते हैं कि इस ऐप की वजह से शहरी घर बैठे तमाम तर सहूलियात फराहम कर सकते हैं। कैमरामैन आसम आपके साथ वक़ास शरास, न्यू फैसलाबाद। न्यू के इस बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।